ہاسپٹل سے گھر پہنچا اور بوجھل قدموں سے چلتا ہوا لاؤنج میں داخل ہو رہا تھا کہ اندر سے آتی آوازوں پہ ٹھٹک گیا. ارے یار، ہم تو اس دنیا سے کنوارے ہی جائیں گے. پتا ہے، میں نے بی جان سے کہا ہے کہ ہماری منگنی کو 4 سال ہو گئے ہیں، پلیز ہماری شادی کر دیجئے. مگر انہوں نے فوراً کہا جب تک ہمدان کی شادی نہیں ہوگی تب تک کوئی شادی نہیں کرے گا. مجھے لگتا ہے وہ اس دنیا میں شادی نہیں کریں گے اور ہماری بھی نہیں ہوگی. اندر سے زید کی روحان سی آواز کانوں سے ٹکرائی. اب کیا کہہ سکتے ہیں، خاندان میں ان کی عمر کی کوئی لڑکی ہے بھی نہیں، اور جو تھی اس نے تو صاف شادی سے منع کر دیا اور کسی اور کے ساتھ چلے گی. تو بس دل پر لے بیٹھے ہیں اور ہمیں بھی ذہنی طور پر ٹارچر کر رہے ہیں. ہمیں مانتی ہوں کہ میرے بھائی ہیں، لیکن یار ہمارے بھی تو کوئی ارمان ہے نا. کتنے سال ہو گئے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہی نہیں آیا، اور اوپر سے کہیں اور شادی پہ ہمیں لے کے بھی نہیں جاتے. پتا ہے کتنا عرصہ ہو گیا میں نے کوئی بھی ساڑی لہنگا نہیں پہنا. اس کی بہن امیرا بولی تو وہ گہرا سانس بھرتا اندر داخل ہوا، اور جیسے اس نے سلام کیا سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اشارہ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا انہوں نے ان کی باتیں سن تو نہیں لی. وہ بے نیاز سا بنتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. کپڑے چینج کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ ملازمہ نے اس کی کافی لے آئی. وہ کافی کا مگ تھامے ٹیرس پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کا ذہن شیدخ اور امیرا کی باتوں کی طرف ہی تھا. پاشا ہاؤس کے مالک عبدالکلام پاشا کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے تھے. بڑا بیٹا خاور پاشا، منجلا بیٹا عارف پاشا اور سب سے چھوٹا جواد پاشا، جو کہ 16 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے. 4 سال پہلے خاور اور عارف اپنی بیویوں سمیت دنیا سے جا چکے تھے. عارف پاشا کے 2 بیٹے ہمدان، ارمان اور بیٹیاں پلوشا اور میرا تھی، جبکہ چھوٹے بیٹے عارف پاشا کی ایک بیٹی کرن اور 2 بیٹے زید اور زہیب تھے. کرن کی شادی ہمدان سے طے تھی، مگر کرن کو اپنا کلاس فیلو پسند آ گیا اور ہمدان نے اس کے بعد شادی کا نام لینے سے بھی منع کر دیا. عبدالکلام پاشا کی بیٹی فرحانہ پاشا کے ایک بیٹی کنزا اور ایک بیٹا روبیدہ تھا. پلوشا کی زید سے، کنزا کی شادی ارمان سے، جبکہ امیرا کی روبیدہ سے طے تھی. زہیب کی شادی فرحانہ کی نند کی بیٹی ربیہ سے طے ہوئی تھی. یہ بچوں کے رشتے جب طے ہوئے چند مہینوں کے بعد ہی خاور پاشا، عارف پاشا اپنی بیویوں کے ساتھ ایک فلائٹ کریش میں دنیا سے چلے گئے، اور ہمدان اس کے بعد وہ بالکل ہی ٹوٹ گیا تھا. ان 4 سالوں میں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پایا تھا. اس نے سارا کاروبار سنبھالا، ساتھ اپنا ہاسپٹل بھی، جو کہ بہترین ہاسپٹل میں سے ایک تھا. وہ بظاہر پتھر دل خلوص لگتا تھا، مگر اندر سے احساس تھا. وہ کمرے میں آ کے سوچ میں ڈوب گیا کہ اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ بی جان کو کس طرح منائے گا. اگلے دن وہ ہاسپٹل کے کیفیٹیریا میں بیٹھا تھا، اپنے دوست عاظم سے اسی سلسلے میں بات کر رہا تھا. ایک کام کر، کانٹریکٹ میرج کر لے، اگر اپنے بھائی کے لیے ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑ دینا. عاظم کی بات پر چونک کر ڈٹ گیا. جہاں تک مجھے لگتا ہے میں کبھی بھی نہیں نبھا پاؤں گا، اس لیے چھوڑنا تو اسے پڑے گا. بس چند مہینے تک شادی ہو، لیکن اتنے ماں کے لیے شادی کون کرے گا اور کیوں؟ وہ سر جھٹک کر بولا. ہونے کو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور پیسے کے لیے انسان بہت کچھ کر جاتا ہے. میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آس پاس اگر کوئی مجھے ملے جو کہ تم سے شادی کر سکے، اور تم اس کی اوز کچھ رقم دے دینا. عاظم نے کہا. دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے دھوکہ مل جائے. وہ سر جھٹک کے بولا. اچھا چل دیکھتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مل ہی جائے. ویسے تمہاری اتنی امپلائیز ہے جو کہ تمہارے لیے ایک جھلک کے لیے تڑپتی ہیں، کسی ایک کو منا لو اس بات کے لیے. وہ بولا. تمہیں لگتا ہے کہ وہ مان جائیں گی؟ وہ سب لوگ مجھے ایک جھلک دیکھنے کو پتہ ہے کتنا تڑپتی ہیں. میری دولت کی وجہ سے، وہ تلخ لہجے میں بولا. جانتا ہوں یار، اس لیے تو کہا ہے ان میں سے کسی ایک کو منا لو اگر مانتی ہے تو. عاظم نے آنکھ دبا کر کہا تو گہرا سانس بھر کے رہ گیا. عاظم کے جانے کے بعد وہ کافی پی رہا تھا کہ جب ہی کیفیٹیریا میں کام کرنے والا لڑکا اس کے پاس آیا. سر، ابھی میں نے آپ کی اور عاظم سر کی گفتگو سنی، میں اس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ رازدانہ انداز میں بولا. وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا.
بیٹھو تنویر اور بتاؤ کیسے؟ اسے سامنے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سر جی میری منگیتر ہے اور مجھے اسے اپنا گھر لینا ہے، اور مجھے پتا ہے وہ اپنا گھر لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گی۔ تنویر چمکتی آنکھوں سے بولا تو اس کے اندر ناگواری کی ایک لہر اٹھی، مگر سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں جانتا ہوں آپ کس طرح کے انسان ہیں، اس لیے آپ پر اعتبار کرتے ہوئے چند مہینوں کے لیے اس کی شادی کروں گا، اور میں امید کروں گا آپ اسے چھوڑیں گے بھی۔ میں بہت پیار کرتا ہوں اس سے، اس لیے بس یہ سب کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں وہ اچھی زندگی جیے۔ میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا اور مجھے اسی لیے اسے دھکے کھا کھا کے زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے پاس اپنے پیسے آئیں، میں اپنا کیفے خرید کر وہاں کام کروں تاکہ میں اسے اچھی زندگی دے سکوں۔ کوئی ایسے تو نہیں دے سکے گا نا صاحب جی؟ تنویر بولا تو اس کے تنے ہوئے سانپ ڈھیلے ہو گئے۔ وہ اپنی محبت کے لیے کر رہا تھا تو اسے غلط نہ لگا۔ وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن یہ نکاح کچھ شرائط کے ساتھ ہوگا جس پر اس نے سگنیچر کرنے ہوں گے، تاکہ بعد میں تم لوگ کسی قسم کا کوئی بلیک میل نہ کر سکو مجھے۔ وہ بولا آپ کی جو بھی شرطیں ہوں گی ہمیں منظور ہوں گی، آپ مجھے بتائیے آپ کی کہاں ملاقات کروانی ہے؟ تنویر بولا۔ اس نے اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا اور سنڈے کا ٹائم دے کر وہ کے کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا، اور پیچھے تنویر اٹھ کر ڈانس کرنے لگا۔ وہ کام کر اپنا، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیفے کے مالک نے کہا۔ ابے کام گیا بھاڑ میں تو عیاشی کروں گا، آج سے یہ چھوٹی موٹی نوکری نہیں کروں گا، تنویر بولا اور ٹرے پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ گھر پہنچا تو اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا تو سریا اس کی ماں 17 سالہ بیہ کو بے دردی سے مار رہی تھی، جبکہ اس کی بھابھی زبیدہ اور دونوں بہنیں فرحانہ اور ریحانہ دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہے تو ماں؟ چھوڑ اس کو، کتنی بار سمجھایا اس پر ہاتھ مت اٹھایا کر۔ وہ چیخ اٹھا اور جلدی سے اسے تھام کر کھڑا کیا، جس کا بدن ہولے ہولے لذر رہا تھا۔ تو کیوں لیتا ہے اس کی سائڈ اتنی؟ جانتے بھی ہو اس نے کیا کیا ہے؟ آج پھر سے فرحانہ کا رشتہ جو دیکھنے آئے تھے نا، اس منحوس کو پسند کر گئے۔ نینے سے منع کیا تھا ان کے سامنے مت آنا، مگر یہ دروازہ کھولنے چلے گی، اور انہوں نے آتے ہی کہا وہ جو پیاری سی لڑکی ہے ہمیں وہی پسند آئی ہے۔ پہلے ہی گھر میں ہمیں جہیز دینے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اوپر سے یہ کلموہی کی وجہ سے میری بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ سریا چیخ کر بولی، میرے مکھن جا تو کمرے میں۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے بولی تو اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ارے اماں تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کے بے داغ حسن پر اگر کوئی داغ لگ گیا نا تو میرے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، اور جو تم لوگوں کو میں نے سپنے دکھا رکھے ہیں نا کہ بہت بڑا گھر لے کے دوں گا، وہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے اس کی اتنی حفاظت کی ہے۔ اس کے اور اپنی بھابھی کے جاتے ہی وہ شاطرانہ لہجے میں بولا تو ان تینوں ماں بیٹیوں کی آنکھوں میں حیرت در آئی۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ سریا نے چونک کر پوچھا۔ اماں میرے آفس کے باس ہے نا، انہیں لڑکی چاہیے، کچھ دنوں کے لیے نکاح کریں گے اس سے اور اپنے ساتھ رکھیں گے، چھوڑیں گے بھی نہیں۔ ویسے تو پیسے ملیں گے ہی، اس کے علاوہ بس ایک بار پیسے آگے نا پھر میں اسے کئی جگہوں پر بھیجوں گا، ایک ایک رات کے لیے۔ پتا ہے بڑے پیسے ملتے ہیں، مجھے کبیر بتا رہا تھا۔ اس نے پاس ہو کر کہا تو اب تینوں کی آنکھیں جھگمگ کرنے لگی تھی۔ تمہارے باس شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس نے اس کو دیکھا ہے؟ فرحانہ نے پوچھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ان کو لڑکی چلے گی۔ دراصل ان کی دادی ہے نا، ان کی شادی کرنا چاہتی ہے، مگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتے، اور اسی وجہ سے ان کی دادی نے شرط رکھ دی کہ گھر میں کسی کی شادی نہیں ہوگی، تک کوئی شادی نہیں کریں گے۔ تو بس اپنے باقی بہن بھائیوں کی شادی رچانے کے لیے یہ ٹانگ کرنا پڑے گا، یعنی کہ یہ کانٹریکٹ میرج کرنی ہوگی۔ اماں پتا ہے کتنے امیر ہے وہ، اور میں جتنے بھی پیسے مانگوں گا نا وہ دیں گے، اور دیکھنا
پھر میں اپنی بہنوں کی شادی کتنی اچھی جگہوں پر کرتا ہوں۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور تینوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر ابیحا کے کمرے میں آیا تو وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میری مکھن، میری ملائی، کیوں رو رہی ہے؟ بس کر دے، بس کچھ عرصہ اور تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا، پھر سب کچھ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ میں تمہارے لیے بہت اچھا گھر خریدوں گا جہاں پر تم اور میں رہیں گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سچی مچی؟ وہ اپنی حسین آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولی، بالکل میری مکھن ملائی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا تھوڑا سا ساتھ دینا ہوگا۔ وہ بولا، میں ہر طرح کا تمہارے ساتھ دوں گی، بولو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ جلدی سے بولی، تمہیں میرے باس سے کچھ عرصے کے لیے شادی کرنی ہوگی، وہ تمہیں اس کے بہت سارے پیسے دیں گے جس سے ہم اپنا گھر بنا سکیں گے، اور پھر میں اپنا کاروبار کروں گا، اور اس کے بعد جب طلاق دے دیں گے نا، پھر میں اپنی مکھن ملائی سے شادی کر لوں گا۔ وہ اس کی تھوڑی سے تھامتے ہوئے بولا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ نم لہجے میں بولی، تمہیں لوگوں کی پرواہ کر رہی ہو؟ ہم لوگوں کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ ہمارا اپنا گھر ہو؟ کیا میں اسی طرح چند ہزار کی نوکری کروں؟ میں چاہتا ہوں میرا اپنا کیفیٹیریا ہو، اپنا ہوٹل ہو، چاہے چھوٹا موٹا، تاکہ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے سکوں۔ پلیز میری خاطر مان جاؤ نا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتے اس کے گرد اپنی باتوں کا جال بنتا جا رہا تھا۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے علاوہ کسی اور مرد کے بارے میں نہیں سوچ سکتی ہوں۔ آپ نے مجھ سے محبت کی ہے تو آپ کس طرح مجھے کسی اور کے ہونے دے سکتے ہیں؟ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اور آپ کی محبت میرے لیے قیمتی دولت ہے، اور مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ وہ گلوگر لہجے میں بولی۔ اس کی بات کے جواب میں تنویر دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، مگر ضبط کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی تھامے ہوئے دیکھنے لگا۔ میری مکھن، میری ملائی، میں نہیں چاہتا تجھے مزید کوئی تکلیف ہو، میں بس تمہارے لیے سوچ کر کر رہا ہوں، اتنا تا ساتھ دے۔ میرا مکھن، میں بھی اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ اس گھر میں رہیں گے تو یہ تمہارے ساتھ ویسے ہی نکرانی والا سلوک کرتے رہیں گے، اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پلیز میری خاطر مان جاؤ۔ کیا تم نہیں چاہتی میں اور تم ایک اچھی زندگی جیے، کہ لوگ ہم نے حسرت سے دیکھے؟ اور اس کا ہاتھ تھامے بولا تو وہ لب کچلتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ دل مان نہیں رہا تھا، مگر وہ شخص اس گھر کا واحد شخص تھا جس کی ہمیشہ کیئر کرتا تھا، اور اس کے لیے وہ سب سے لڑ پڑتا تھا۔ اس لیے وہ اس کو بہت پسند کرتی تھی اور دل سے اس کا ساتھ چاہتی تھی، مگر اس سب کے پیچھے اس کا کیا گندا مقصد تھا اسے ابھی تک معلوم نہیں تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کل تمہارے لیے بہت اچھا سا ڈریس لوں گا، تم اچھی طرح تیار ہو جانا۔ اتوار کے دن پھر ہم ساتھ سر سے ملنے جائیں گے۔ وہ اس کا رخسار تھپتھپا کر بولتا اٹھ کر چلا گیا۔ وہ بہت بے چین سی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اگر وہ بات نہیں مانے گی تو کہیں اس کا یہ واحد سہارا ہی نہ چھوٹ جائے۔ پھر اتوار کے دن وہ اسے پارلر لے گیا، اور وہاں پر جا کے اس نے فیشل ویکس کروائی اور ادھر ہی کپڑے چینج کیے۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد آئینے میں جائزہ لیا تو وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اللہ نے ویسے ہی بہت بڑا حسن دیا تھا، مگر آج تو کچھ زیادہ ہی حسین لگ رہی تھی۔ ہلکے پنک کلر کی شیفون کی انارکلی فراک بھی بہت جچ رہی تھی اس پر۔ چلے تنویر، دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے بولی، جو کہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں چلو میرے مکھن، اس کی بلائیں لیتے ہوئے بولا تو شرما گئی۔ پھر اسے لے کر ایک عالی شان عمارت کے سامنے آیا۔ پھر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر آئے اور ایک فلیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بیل دی تو کچھ دیر کے بعد ایک شخص باہر آیا جو کہ ملازم لگ رہا تھا۔ جی میں حمدان صاحب سے ملنے آیا ہوں، تنویر نے کہا۔ جی جی آئیے، آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، وہ ملازم جلدی سے بولا تو اسے لیے اندر آیا۔ فلیٹ کافی بڑا تھا اور اس کا لاؤنج بہت زبردست تھا۔ ابیحا نے دل ہی دل میں سراہا اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔
कुछ देर गुजरी और एक हैंडसम सा आदमी अंदर दाखिल हुआ, जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखी थी। इसे देखकर वो एक पल के लिए ठटक गया, फिर इग्नोर करता हुआ सोफे पे बैठ गया। अबीहा, ये मेरे सर जी हैं, और सर जी, ये है वो लड़की जो मेरी मंगेतर, जो कि चंद माह की बीवी रहेगी। तनवीर जल्दी से बोला, ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी तरह बता देना इसे कि मेरे घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करेगी, और इस शादी को रियल की तरह सबके सामने पेश करना है, और इस काम के बाद हक मेहर की रकम के अलावा 1 करोड़ रुपया दूंगा। स्पार्ट लहजे में बोला तो तनवीर को जैसे बांझी ही खिल गई। जी जी सर जी, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरी मक्खन बड़े अच्छे तरीके से लोगों को हैंडल करती है और बड़े प्यार करने वाली है। वो बिहा का हाथ पकड़कर बोला तो हमदान ने नागवाड़ी से सर झटका। फिर वो अपना प्लान समझाने लगा। पता नहीं से ये दोनों बहुत अजीब लग रहे थे, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। निकाह अभी और इसी वक्त होगा, वो बोला तो अबीहा मतहोश अंदाज में तनवीर की तरफ देखा, मगर तनवीर ने इसके हाथ पे हाथ रख के इसे चुप रहने को कहा। फिर कुछ देर में इसका निकाह अबीहा से हो चुका था। तुम फिलहाल इसे लेकर जाओ, वो कल तुम मेरे घर के सामने छोड़ जाना, और जो वहां करना है वो अच्छी तरह समझा देना। अब तुम लोग जाओ, वो सर्द लहजे में बोला, और इसके जाते ही वो सोफे से बैग से टेक लगाकर बैठ गई। इसके सर में शदीद दर्द हो रहा था, न जाने अंदर अजीब सा गिल्ट क्यों महसूस हो रहा था, मगर वो क्या करता, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वो शादी जैसी जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहता था। अगले दिन दोपहर में तनवीर इसे लेकर आलीशान महल नुमा घर के सामने खड़ा था। वो सहमी सी इसके साथ अंदर जा रही थी। इसकी समझ नहीं आ रहा था कि इसे देखकर सब लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। वो अंदर दाखिल हुई तो अंदर एक शोरगुल बरपा था। कौन है आप लोग बेटा, और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? बीजान ने बैठते हुए पूछा। जी, मेरा नाम तनवीर है और मैं इनका कजन हूँ, और ये आपके बेटे डॉक्टर हमदान की बीवी हैं। इसकी बात पर डाइनिंग हॉल में सन्नाटा छा गया और सब यंग पार्टी वहां जमा होगी। ये देखिए तस्वीर। तनवीर ने इसकी निकाह की तस्वीर आगे करते हुए कहा तो बीजान हैरानगी से तस्वीर देखने लगी। अरमान ने मोबाइल पकड़ा, संजीदगी से देखने लगा। आपको क्या लगता है, आप यहाँ आकर ये बात हमें कहेंगे और हम मान लेंगे? और ये फेक तस्वीर बनाकर कोई भी अपनी माँ बहन को लेकर यहाँ आकर कहेगा कि वो डॉक्टर हमदान पाशा की बीवी है, तो ये बात सच समझेंगे? हमको काट के उल्लू नहीं समझा है क्या? हमें पता है हमारा भाई कैसा है, वो तो लड़कियों को नजर उठा के भी नहीं देखता, और ऐसे ही शादी कैसे करके आ जाएगा? अरमान ने तंग कर कहा, हम क्यों झूठ बोलेंगे, कल ही तो इन्होंने निकाह किया है और छोड़ कर चले गए, इसलिए मैं आज इन्हें यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। ये आपकी अमानत है, आपके सुपुर्द करके मैं जा रहा हूँ। तनवीर उठते हुए बोला तो सब सटपटा कर रह गए। अरे ऐसे कैसे छोड़कर यहाँ चले जाएंगे? हम लोग कैसे किसी पराई लड़की को अपने घर में रखें? जब तक हमारा बच्चा कंफर्म नहीं करे हम बात नहीं मान सकते। नहीं जानने का तो ठीक है, अपने बेटे को फोन करके पूछ लीजिए। तनवीर प्लान के मुताबिक टांग कर रहा था। ठीक है, बुलवा लेते हैं हम अपने बिग बी को घर। प्लीज जरा फोन तो करो सुहेब। अरमान ने कहा तो जहेब ने जल्दी से कॉल मिलाई और उसे सारी तफसील बताई। इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे फोन किया? जब वो कह रही है कि वो मेरी बीवी है तो ठीक ही कह रही है ना, मेरी बीवी है, इसे मेरे कमरे में भेज देना और इसके कजन को कह दो कि वापस चला जाए। दूसरी तरफ से हमदान ने कहा तो जुएब की आंखें हैरत से फैल गईं और सब लोग इसे तजस्सुस से देख रहे थे। क्या हुआ, क्या कहा बिग बी ने? जैद ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। इन्होंने कहा कि मेरी बीवी है, इसे मेरे कमरे में भेज दो और इसके कजन से बोलो वो वापस चला जाए। सुहेब खोए खोए अंदाज में बोला तो अब की बार सबकी आंखें हैरत से फैल गई और जैद उठकर लुटियां डालने लगा। अरे बावले हो गए वो लड़के, बीजान ने चिल्ला कर कहा तो जुहेब अरमान ने इसे पकड़ कर बिठाया। सॉरी बीजान, वो हमारे बिग बी ने शादी कर ली ना, मतलब
हमारी एक अदद भाभी आ गई ना तो इसी खुशी में डांस निकल गया। जैद सटपटा कर बोला तो सब लोग मुंह पर हाथ रखकर अपनी मुस्कुराहट जब्त करने लगे, क्योंकि इनमें से सब जानते थे कि शादी के लिए सबसे ज्यादा अताउला वही हो रहा था। और हमदान की शादी होने का मतलब था अब इन लोगों की शादी भी जल्दी हो जाएगी। अमेरा और पलूषा ने बीजान के कहने पर इसे इसके कमरे में छोड़ा और बाहर निकल आई थी, क्योंकि बीजान का हुक्म था कि इससे कोई भी बात ना की जाए तब तक वो डॉक्टर हमदान से बात नहीं कर रही थी इसके बदले। इन दोनों का तो बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था कि इस प्यारी सी लड़की से बात करे, मगर वो दिल मसू कर बाहर आ गई। फिर खाना खाने के बाद सुहेब और जैद अपने दफ्तर के लिए निकल गए और शाम को वो लोग लाउंज में बैठे चाय पी रहे थे। वैसे घर का माहौल ना बहुत अजीब सा हुआ है। बीजान तो किसी से बात भी नहीं कर रही, इनका तो मूड बहुत ज्यादा खराब है। पलवशा ने कहा, जाहिर बात है इनके लाडले पोते ने ऐसा चांद चढ़ाया है, इन्हें गुस्सा तो आना ही था। इन्हें कितना अरमान था ना बिग बी की शादी का, मगर इन्होंने इनके सारे अरमान खाक में मिला दिए। अरमान ने संजीदगी से बोला, अहम अहम वैसे मैं कुछ ज्यादा ही नोट कर रहा हूँ कि आज आप अरमान अरमान की बहुत रट लगा रहे हैं। अपने नाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं आप बार बार? जैद ने आंखें पटाकर कहा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताकर तो बांगड़ा क्यों डाल रहा था? अरमान ने इसकी गर्दन से जकड़ते हुए कहा, वो मेरे अंदर से खुशी का एहसास निकल रहा था और मैं ये सोच कर बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं कुंवारा नहीं मरूंगा, मेरी भी शादी होगी। अरमान भाई, मेरे भी बच्चे होंगे। ओह माय गॉड। जैद पलवशा को देखकर चहक कर बोला तो पलवशा ने जोर से कुशन इसकी तरफ फेंका। अरे एक तो मुझे जुलाद किस्म के साले मिल रहे हैं, ऊपर से बीवी भी जलाद ही है। वो कुशन कैच करते हुए बोला, मरो जाकर तुम। पलवशा गुस्से से बोली, शादी से पहले बेवा होने का इरादा है क्या? इसे छेड़ते हुए बोला तो सब लोग भी इसे कुशन मारने लगे। वो सब एक दूसरे से मारते हुए हंस रहे थे। सीढ़ियों पर खड़ी अबिया हैरानगी से ये सब देख रही थी, और ऐसी मोहब्बत इसने कहाँ देखी थी। वो बाजू पर कोट डाले अंदर दाखिल हुआ तो लाउंज पे एक तूफान बदतमीजी बरपा था और सब एक दूसरे को कुशन मारते हंस रहे थे। एक कुशन उठता हुआ इसकी तरफ आया, इससे पहले के चेहरे पर लगता हवा में ही कैच कर चुका था। क्या बेहूदगी है ये? चिल्ला कर बोला तो हॉल में सन्नाटा छा गया और वापस पलटती भी एकदम मुड़कर से देखने लगी कि हमदान पाशा पथरीले तासरात लिए खड़ा था और बाकी सब सर झुकाए यूं खामोश थे, गोया किसी कटहरे में खड़े हों। जिन कहीं का कैसे सबकी हंसी छीन ली। वो बड़बड़ाते हुए रेकिंग से टेक लगा गई, ये सब 5 मिनट में साफ होना चाहिए और एक भी चीज इधर उधर नजर ना आए। वो सर्द लहजे में बोला और फिर सीढ़ियों की जानिब पड़ने लगा कि बीजा ने पीछे से पुकारा। वो गहरा सांस भरता इनकी तरफ मुड़ा। अस्सलाम वालेकुम बीजान, कैसी हैं आप? वो पास आकर इनके माथे को चूमते हुए बोला, बैठो, मुझे बात करनी है। इन्होंने सोफे की जानिब इशारा करते हुए कहा तो चुपचाप सोफे पे बैठ गया। बाकी सब लोग साइड पर बैठे तजस्सुस से इनकी जानिब देख रहे थे, मगर वो मुतमईन था क्योंकि कल रात से वो तय कर चुका था कि इसे क्या कहना है। ये सब क्या है? ये शादी होती है? ऐसे कौन शादी करता है? बीजान ने एक ही सांस में कई सवाल कर डाले। ये वही है जो आपको नजर आ रहा है और समझ आ रहा है। और दूसरी बात ये कि शादी कौन करता है? ऐसे मैं करता हूँ। आपको पता ना, दिल में जो आता है मैं वही करता हूँ। मेरे दिल ने कहा कि मैं शादी कर लूं तो कर ली। लड़की अच्छी लगी, बातचीत चली और सब कुछ फिक्स। वो इत्मीनान बड़े लहजे में बोला और सब लोग एक दूसरे को मायने खेज अंदाज में दिख रहे थे। ये भला क्या बात हुई? दिल ने कहा और तुमने कर लिया। अगर लड़की पसंद आ गई तो शादी ही करनी है तो हम हैं में से किसी को आकर बोल देते, हम आपस में बातचीत करके इसके घर लेकर जाते रिश्ता। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी ही करनी होती है।
और पता नहीं कैसे वालिदैन हैं इनके कि उन्होंने ऐसी ही लड़की तुम्हारे हवाले भेज दी। बीजान नागवारी से बोली, इसके माँ बाप नहीं है, वो अपने मामू के घर रहती थी और वो लोग इतने इस्तिताअत नहीं रखते थे कि धूमधाम से शादी कर सके और इस तरह मेहमानों को बुलाकर खर्च भी करना नहीं चाहते थे, तो इसीलिए इसी चीज का रखते हुए इस तरह शादी कर ली। वो गहरा सांस भरकर बोला तो बीजान चौंक गई। ये 3 बच्ची है? बीजान का दिल नरम पड़ गया। जी, वो मुख्तसिर जवाब देते हुए उठ खड़ा हुआ। बात अभी खत्म नहीं हुई है, अब यही चुपचाप बैठ जाओ। बीजान ने कहा तो वो झंझला कर रह गया और निगाहें बेख्तियार सीढ़ियों की जानिब उठी जहां से एक साया गायब हुआ था। ओह, तो बिगवी को अपनी जोजा जी के पास जाना है। जैद की जुबान में खुजली हुई, मगर हमदान की एक घर से ही वो सरपटाकर इधर उधर देखने लगा। अगर आपको कुछ कहना है, बोला, ऐसी शादी को हम नहीं मानते। मैं नहीं जानती इसके घर वाले जिनके लिए यहाँ वो रहती है इसको इस तरह रुखसत करना चाहते थे, लेकिन इस घर में रहते हुए शादी मुमकिन है, तो इसलिए तुम्हारी शादी दोबारा से होगी। बीजान बोली तो वो गड़बड़ा सा क्या, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। वो हड़बड़ा कर बोला तो यंग पार्टी खनकारने लगी। ठीक है, तुम्हारे कमरे में ही रहेगी, लेकिन हर फंक्शन जरूर होगा। जहां पर बाकी सबके होंगे वहां तुम्हारा भी होगा। अगर तुमने इनकार किया ना तो बाकी किसी की शादी नहीं करूंगी। बीजान ने कहा तो सब लोग हड़बड़ाके से देखने लगे। जैद ने हाथ जोड़े तो मफहूम सा मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी बात है कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो इत्मीनान से बोला तो सबके चेहरे खिल उठे। जाओ कमरे में और जाकर हमारी बहू को भेजो, हम इसे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। जब से हमने कोई बात ही नहीं की है उससे। बीजान ने कहा तो वो सर असबाब में हिलाते उठकर खड़ा हो गया। फिर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल नहीं हो रहा था कि बाहर को आती अबीहा से जोर से टकराया, उसे लेता हुआ जमीन पर गिरा। वो जोर से आंखें मीच कर लेटी थी। वो यकटक इसकी सभी चेहरे को देख रहा था जिस पर इंतहा की मासूमियत थी। अहम जिसे यंग पार्टी एक साथ खनकारी तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या भी हो रही है ये? इस तरह तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वो गुस्से से इन सब पर उठकर खड़ा हुआ और भड़क गया तो सब हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगे। वो हम लोग तो अरमान भाई के कमरे में जा रहे थे मूवी देखने के लिए, हम आपके पीछे थोड़ी आ रहे थे। जुहेब ने सटपटा कर कहा तो बाकी सब भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। भाभी, आप भी चलिए ना हमारे साथ, हम लोग मूवी देखने लगे हैं। उमेरा ने कहा तो इसने बेख्तियार हमदान की तरह देखा। कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरे साथ वक्त स्पेंड करना है और फिलहाल वो बीजान से मिलने जा रही है। जाओ तुम बीजान से मिलकर आओ, मैं तब तक कपड़े चेंज कर दूं। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो इसके बालों की लट को कानों के पीछे अरसते हुए बोला तो सबकी आंखें हैरत से फैल गई। हाय ओए, लगता कोई सुधर रहा है। जैद बोला, मगर इसके घूरने पर सटपटा कर अरमान के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो सर चटक कर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। वो आधे पौने घंटे के बाद जब फ्रेश होकर निकला तो वो वापस कमरे में आ चुकी थी और इसके हाथ में खानदानी कंगन देख के वो लब भींच कर रह गया। वो समझ चुका था बीजान ने इसे अपने खानदान के कंगन से बड़ी बहू होने के नाते दे दिए हैं। हमारे दरमियान जो डील हुई है वही तुम्हें मिलेगा, इसको ले जाने के बारे में सोचना भी मत। ये मेरी माँ को पहनाए गए थे और ये सिर्फ और सिर्फ इस घर की हकीकी बहू को मिल सकते हैं। वो इसकी कलाई को जगड़ते हुए बोला तो वो नम आंखों से इसे देखने लगी। जी अच्छा, वो आहिस्ता से बोली। बड़ी हैरत हुई थी मुझे कि कितनी मासूम दिखती हो, मगर चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई, किसी की भी बीवी बनने को तैयार हो गई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़े होते हुए तंजिया लहजे में बोला, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। वो लब कुचलते बोली, लटी गोल्ड डिगर। वो तलख लहजे में बोला तो वो नासमझी से देखने लगी।
जी, वो क्या होता है? वो हैरानगी से बोली तो वो मुड़कर इसे देखने लगा। कितना पढ़ी हुई हो तुम? वो इसे सरतापा देखते हुए बोला। 8वीं तक। वो सर झुका आहिस्ता से बोली तो तंजिया मुस्कुराहट से इसे देखने लगा। तुम जैसी हसीन लड़की को पढ़ने की जरूरत भी क्या है? पढ़ते लिखते और हुनर वो सीखते हैं जिन्होंने कुछ मेहनत करना हो। तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की को इसकी क्या जरूरत? तुम जैसी लड़कियां तो चंद मिनट किसी को देकर लाखों कमा सकती हैं। वो तंजिया लहजे में बोला तो लब कुचलते सर झुका गई। आप शायद मुझे कुछ गलत बोल रहे हैं। आपको मुझे गलत बोलने का कोई हक नहीं है। वो लब भींच कर बोली तो वो उठकर इसके पास आने लगा। वो घड़बड़ा कर पीछे होने लगी और इसका पांव मुड़ा और इससे पहले कि वो गिरती इसे बाजू से खींचकर अपने करीब ले गया। वो थूक निकलते हुए खौफजदा निगाहों से इसे देखने लगी। आइंदा से मेरे सामने इस तरह जबान दराजी मत करना वरना काट के रख दूंगा तुम्हारी जुबान। वो बोला तो इसकी आंखों में नमी सी झलकने लगी। वो लब भींच कर से छोड़ता हुआ रुख फेर गया। वो चुपचाप सोफे की जानिब बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद मुलाजमा अंदर आते हुए ने खाने के लिए कहा तो वो डाइनिंग हॉल में चले गए जहां ये सब आपस में किसी बात पर हंस रहे थे, मगर इन्हें देखते ही सब चुप हो गए। हल्की फुल्की गुफ्तगू में खाना खाया गया और वो चाय का कहता हुआ कमरे में चला गया। कुछ देर के बाद वो सबके साथ बैठी रही और कमरे में आई तो वो सोफे पे बैठा था। वो कुछ देर तक इसे देखती रही, फिर बेड पर लेट गई और कुछ देर में नरम बेड पे नींद मेहरबान हो चुकी थी। वो काम पर करके फारिग हुआ तो इसे बेड पे सोता देख इसके माथे पर बल पड़ गए। वो पास गया और आहिस्ता से पुकारा तो वो टस से मस ना हुई। ओ मैडम, वो इसके बाजू से खींचकर बिठाते हुए बोला तो वो घबराई हुई इसे देख रही थी। इसकी ग्रे आंखों में नींद का खुमार इसे एक पल के लिए मिसमराइज कर गया। उठो मेरे बेड से। वो इसकी हसीन आंखों में नजरें चुरा कर बोला मगर मैं कहाँ सोऊं? लब कुचलते हुए बोली वहां सोफे पे। वो कहते हुए बिस्तर जाते हुए कंफर्टर सूंघने लगा। मेरा बिस्तर गंदा कर दिया गोल्ड डिगर गर्ल ने, ये तुम ही ले लो। वो कंफर्टर इस पर फेंकते हुए तनफ्फुर भरे लहजे में बोला तो इसकी बात पर दुखी होकर बेड से उठकर सोफे पर चली गई। फिर अगले दिन भी वो सुबह सुबह उठते हुए इसे जलील करने लगा। वो बात बात पर इसे गोल्ड डिगर बोलता। फिर इसके हॉस्पिटल जाते ही वो उठकर बाहर आई। पलवशा और उमेरा कोई सीरीज देख रही थी जो कि इंग्लिश में थी, मगर इनमें एक वर्ड आया गोल्ड डिगर तो वो गौर करने लगी तो इसने महसूस किया स्टोरी कुछ यूं थी कि वो लड़की मर्द के सारे पैसे के लिए ताल्लुक रखती है और वो अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और का हाथ थाम लेती है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है। वो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई थी। कुछ देर के बाद वो उठकर अंदर आई और घुटनों में सर दिए रोने लगी। जी हल्का हुआ तो सोफे पर भी सो गई। वो वापस आया और अपना काम निपटा कर कमरे से निकल गया। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थी। हर एक बहुत खुश था और धड़ाधड़ शॉपिंग चल रही थी। इसे भी शॉपिंग के लिए कहा गया मगर इसने सहूलियत से इनकार कर दिया तो बीजान ने इसकी साइज की ड्रेसेस लाने का जिम्मा उलवशा को दिया। आज शादी का पहला फंक्शन था। उमेरा की फरमाइश पर बारबी नाइट रखी गई जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, मगर यहाँ दूल्हे हजरात भी शामिल होने वाले थे और पार्टी फार्म हाउस में रखी गई थी। हमदान सुबह से ही इधर गया हुआ था। शाम के फंक्शन में सब दुल्हन अपने फेवरेट फेरी ड्रेसेस में आई थी और हमदान समेत बहुत से लोगों की निगाहें तो अंदर दाखिल होती अबीहा पर ही ठहर सी गई थी। वो सर झटक के इधर उधर देखने लगा पर वहां पर मौजूद लोग इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर रहे थे और वो गुमसुम सी एक साइड पे खड़ी थी और हमदान के वो दोस्त जो वकील थे इसे बड़ी बेबाक नजरों से देख रहे थे और वो इनकी निगाहों से डिस्टर्ब सी एक साइड पे उठ के बैठ गई थी। कुछ देर के बाद उमेरा इसका बाजू खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई थी जहां वो लोग कपिल डांस कर रहे थे। अरमान हमदान को ले आया था। वो इसकी कमर में हाथ डाले करीब कर गया। फिर जो जूस का गिलास थाम ही रही थी इसकी मैक्सी पर गिर गया। वो साफ करने अंदर गई तो जैसे ही साफ करके मुड़ी तो वकील साहब ने इसका रास्ता रोका। हमदान साहब के साथ फारिग हो जाओ,
तो एक काम करना, मेरे पास आ जाना, चंद रातों का भोग दूंगा। इस शख्स की बात पर वो फक चेहरे से इसे देखती साइड से होकर गुजरने लगी तो इसका रास्ता रोकता हाथ थाम गया तो मदहोश अंदाज में इसे देखने लगी। छोड़िए मुझे, वो तरफ कर बोली तो वो शख्स इसे दीवार से चिपकाता इस पर झुका तो इसे पूरी कुव्वत से पीछे हटाती वॉशरूम में जाकर खुद बंद हो गई। वो 2 घंटे से वहीं पर रोज सिसक रही थी। फिर किसी ने दरवाजा नॉक किया तो वो अपनी हिचकियां दबाने लगी। अबीहा, तुम अंदर हो? हमदान की आवाज सुनाई दी तो जल्दी से दरवाजा खोलती बाहर निकलकर इसके गले लग गई। वो साकित जामिद खड़ा का खड़ा रह गया। फिर वो आहिस्ता से पीछे हुई तो निगाहें चुरा गया। क्या हुआ तुम्हें, ठीक हो? कुछ देर के बाद वो बोला तो वो सर इसबाब में हिला गई। फिर बाकी का वक्त वहां सहमी ही रही और एक साइड पर बैठी रही। वो उठी ही नहीं थी। हमदान ने बहाना किया कि वो ठीक नहीं तो सब बार बार इसके पास आकर हाल पूछ रहे थे। वो घर पहुंची तो अंदर दाखिल होते हुए बेहोश हो चुकी थी। वो जल्दी से इसे लेकर कमरे में आ गया। बीजान भी हामती कामती ऊपर आ गई थी। हाय, मेरी बच्ची को नजर लग गई। जा फिरोजा, जाकर सदका बेच मेरी बच्ची का। बीजान इसका माथा चूमते हुए बोली तो वो इनकी मोहब्बतों पे तरफ उठी थी। वो पूरी रात रोती सिसकती रही और हमदान बार बार इससे हाल पूछ रहा था। सुबह ही था हमदान शादी के फंक्शन के मुतालिक किसी पर फोन पर लगा हुआ था। वो उंगलियां चिटकाती हुई पास आई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो बोला, क्या आपको गलत नहीं लग रहा जो हो रहा है? वो लब कुचलते हुए बोली, क्या मतलब? वो हैरानगी से बोला, ये सब अच्छा नहीं लग रहा मुझे। बीजान को पता चला तो कितना दुख होगा इन्हें। वो लब कुचलते हुए बोली, तुम्हें बीजान की फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें पैसों से मतलब है ना, तो इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? तुम जैसी लड़कियां तो कुछ भी कर जाएं। किस तरह की तरबियत हुई तुम्हारी अच्छे से पता है, और खानदान की कदर तुम कहाँ समझ सकती हो? वो रूखे हुए अंदाज में बोला तो इसके आंसू ठठरने लगे। मैं गलत हूँ, चले ठीक है, क्योंकि मेरी तो तरबियत करने वाली माँ बाप ही नहीं थे, मगर आप तो आला खानदान के पढ़े लिखे इंसान हैं, तो आप में और मुझ में फर्क होना चाहिए, मगर नहीं है। अगर मैं पैसों की खातिर आपसे रिश्ता वाबस्ता करते हुए हूँ तो इसीलिए मेरे खानदान की इज्जत मान का मालूम नहीं, मगर आप खुद भी ऐसे ही हैं। आपको भी कौन सा कदर है? मैं तो हूं ही गंदी, मगर आप तो बहुत अच्छे हैं ना। जाइए, जाकर बताइए आपने मुझसे शादी क्यों की? सच बता सकते हैं आप? वो बोलती चली गई थी। आज वो अंदर तक हिल चुकी थी, क्योंकि आज वो बहुत गैर महफूज खुद को महफूज कर रही थी। ऐसा लग रहा था गोया पूरी दुनिया के मर्द इसके जिस्म को नोचना चाहते हैं। हाउ डेयर यू! आइंदा से ऐसी बात की ना तो जान से मार डालूंगा। वो गुस्से से गिराया तो वो हाथ छुड़वाते हुए वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो सर झटक कर बाहर निकल गया। अगले 2 दिन पुरसुकून गुजर चुके थे। आज माइयों की रस्म थी। सब दुल्हन येलो कलर्स के शरारों में मलबूस थी, मगर हैवी गोटी के दुपट्टे सबके ही मुख्तलिफ थे। आज तनवीर भी फैमिली समेत आया हुआ था, क्योंकि बीजान ने बुलवाया था, और सब लोग इस महफिल को देखकर मुंह में उंगलियां दबा के रह गए थे। वो एक साइड पर गुमसुम सी बैठी थी कि तनवीर इसके पास आया। ओ मेरी मक्खन मलाई, तो बड़ी हॉट चीज लग रही है। इसकी थोड़ी थामते हुए बोला तो जरा फासले पर खड़े हमदान ने जोर से मुट्ठियां भींच ली और तेजी से पास आया। यहाँ इस वक्त मेरी फैमिली मौजूद है और तुम मेरी बीवी का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये मेरे घर वाले कभी ही पसंद नहीं करेंगे और मुझसे 100 तरह के सवाल करेंगे। इसलिए मशवरा है, अपने जज्बात को कंट्रोल करो। वो पास आकर सर गलेचे में बोला और फिर इसका हाथ थामे स्टेज की जानिब बढ़ गया। वहां पर इनका बेहतरीन फोटोशूट हुआ। अपने चेहरे पर स्माइल रखो वरना पैसा कट जाएगा। वो मुस्कुराते हुए इसके कान के पास बोला, और इसके लहजे में तंज की अमेजिश थी।
फिर वो दोनों एक हैप्पी कपल बनकर अपना फोटो शूट करवा रहे थे। गुड गर्ल, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी बहुत अच्छी है कि तुम बात को जल्द समझ जाती हो। फिर फंक्शन खत्म होते ही बीजान ने तनवीर की पूरी फैमिली को वहां पर रोक लिया था ताकि वो इनके साथ चाय पिए। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? पहले आपने इन्हें शादी पे बुलवाया और अब ये सब चिल्ला उठा था। पुत्र, लड़कियों के बड़े अरमान होते हैं, फिर वो जैसे भी हैं, लोग इसके अपने हैं। सबसे बढ़कर वो लड़का इसका कजन है और मेरे ख्याल में इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहते हैं। अभी पुत्र ने बताया था कि वो इसका बहुत ख्याल रखता है और देखो ना, इस घर तक भी पहुंचा आया। मैंने सोचा चलो इसके सगे बहन भाई तो है नहीं, वही इसका भाई बनकर इसकी रुखसती कर देगा। बीजान की बात पर इसने सोफा पर बिहा के साथ बैठे तनवीर को देखा। अरे मेरी मक्खन मलाई, मुझे अपना घर दिखाना, तनवीर ने कहा तो इसके तर्जे तखातिब पर रगे जैसे तन गई। फिर वो बीजान के कहने पर इसे घर दिखाने चली गई, मगर इसके अंदर कुछ सलग रहा था। कुछ देर के बाद वो अंदर वापस आ गए और वो खोजती हुई निगाहों से दोनों को देख रहा था। फिर वो गुस्से से उठकर अपने कमरे में आ गया और अरमान की निगाहों ने दूर तक इसका ताकुब किया। सबके जाने के बाद सब अरमान के कमरे में मूवी देखने बैठ गए और उमेरा उठकर अबिया को बुलाने चली गई। क्या बात है अरमान भाई, क्या सोच रहे हैं आप? जुहेब ने पूछा। तुम लोग ने कुछ नोट किया? वो तनवीर भाभी का कजन जो है वो कुछ ज्यादा ही भाभी के करीब हो रहा था। बार बार इनका हाथ पकड़ा था, ऊपर से बार बार बोले जा रहा था मेरी मक्खन मलाई। और मैंने नोट किया भाभी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, बहुत घबराई हुई लग रही थी, जैसे बहुत अनकंफर्टेबल हो। अरमान ने कहा, ओह हेलो, कभी तुमने मुझे इतने गौर से देखा है और गैर लड़कियों को इतने गौर से देखते हो? किंजा ने कहा तो वो सटपटा गया। अरे तो मैं तो तुम्हें रोज देखता हूँ ना, तुम जानती हो ना मुझे पुलिस वाले बनने का कितना शौक था, लेकिन बिग बी ने मुझे बनने ही नहीं दिया। मगर मेरे अंदर का जसूस खत्म नहीं हुआ। तुम लोगों ने शायद नोट नहीं किया, मगर मैंने नोट किया कि भैया बहुत ज्यादा मुस्तरिब थे और इस वक्त मजाक का वक्त नहीं था। मैं बिल्कुल भी सीरियस बात कर रहा हूँ। उस संजीदगी से बोला तो बाकी सब भी सोच में डूब गए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अरमान भाई, जो भी है हम लोग आपस में कजन्स हैं, हमारा आपस में इतना प्यार है, लेकिन हम इस तरह किसी कजन का हाथ थामने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा कि पलवाशा का हाथ सुहेब भाई पकड़े, और ना ही अरमान भाई बर्दाश्त कर पाएंगे कि मैं किंजा भाभी का हाथ पकड़ूं। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि जो कुछ अरमान भाई को और हमें देखा वो बिग बी को क्यों नहीं दिखा। ऐसा नहीं है, तुम लोगों ने दूसरी बात नोट नहीं की, मैंने बिग बी को भी देखा। वो ना सिर्फ मुस्तरिब थे बल्कि इनके चेहरे का रंग बार बार मुतगैर हो रहा था, जैसे कि वो खुद को जब्त कर रहे हों। अरमान ने कहा, ओह, हमने वाकई ये नोट नहीं किया, क्योंकि हम में से किसी की भी हिम्मत ही नहीं थी इनके चेहरों को देखने की। हर वक्त तो गुस्से में रहते हैं, जैद ने कहा। मुझे कुछ और भी फील हुआ, शायद वो तुम लोगों को फील नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि भाभी के दरमियान कुछ अनबन हो रही है। वो दोनों वैसे कपल नहीं है जैसे होना चाहिए। हालांकि भैया ने बोला है कि इनकी पसंद की शादी है, इन्हें पसंद आई, इन्होंने शादी कर ली, लेकिन इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं है। और शादी के दिन भी कितने हुए हैं। अगर इन्होंने इन्हें शॉपिंग करवाने के लिए जाना जरूरी समझा और ना ही किसी चीज में दिलचस्पी ले रहे हैं, और ना ही मैंने इन्हें रोमांस करते हुए देखा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जो वो छुपा रहे हैं। अरमान ने कहा तो बाहर खड़ा हमदान लब भींच के रह गया। वो अरमान से मेहंदी के फंक्शन की थीम पूछने आया था, मगर बगैर पूछे ही वो वापस पलट गया। वो कमरे में आया तो अबिया फोन पे लगी हुई थी, इसे देखते ही फोन रख दिया। कौन था?
اس نے خشک لہجے میں پوچھا۔ تنویر تھے۔ وہ آہستہ سے بولتی واش روم کی جانب بڑھنے لگی کہ جبھی اسے بازو سے جکڑ کر دیوار سے لگا گیا۔ جب تک تم میرے نکاح میں ہو تو میرے علاوہ کسی مرد کو نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی اس سے بات کر سکتی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں تنویر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن فی الحال تم میری بیوی ہو، تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ وہ اس کے جبڑے دبوچ کر گرایا تھا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تو اس کی گرفت جبڑے پر نرم ہو گئی۔ وہ آہستہ سے اسے چھوڑتا پیچھے ہو کر گہرے گہرے سانس پڑنے لگا۔ اگلے دن وہ لان میں رات کے فنکشن کی تیاری کروا رہا تھا۔ پھر وہ سوئمنگ پول ایریا کے طرف کا حصہ دیکھنے کے لیے وہاں گیا تو وہاں کھڑی بیا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ اسے دیکھتے ہی اندر کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ ایک دم سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے اس کے گریبان سے پکڑا، مگر وہ اسے لیتے ہوئے سوئمنگ پول کے اندر جا گری۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جو بھیگا ہوا تھا۔ وہ بھی خود سا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے چہرے کے ہر نقش پہ اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ وہ ساکت و جامد سی اس کے حصار میں قید، آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ ہمدان کی نگاہیں اس کے کپ کپاتے ہونٹوں پہ تھی۔ وہ بے اختیار ان پر جھکتا، انہیں نرمی سے اپنی دسترس میں لے گیا اور اب کی بار تڑپ کر اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اس کی کمر کے گرد مضبوطی سے جکڑے اسے مزید قریب کر گیا۔ دونوں کے درمیان 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی مزاحمت چھوڑ کر اسے قربت میں مدہوش ہو گئی۔ اہم ایک ساتھ ینگ پارٹی نے واقع کھنکھارا تو وہ ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ او گاڈ یار، بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں آپ دونوں، زہیب نے تصویر کھینچتے ہوئے کہا۔ واٹ دا فک، کیا بےہودگی ہے یہ، وہ غصے سے بولا تو زہیب نے ایک اور تصویر بنا لی۔ وہ جھنجھلا کر اپنا کوٹ اتار کر سے پہنا تھا، اس کا ہاتھ تھامتا ہوا سب اسے دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آتے اس نے ہاتھ چھوڑتے وہ غصے سے صوفے پر دکھیلا اور اس کے جبڑے بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم میری ذرا سی توجہ پر زیادہ خوش مت ہونا، ایکسٹرا پے کر دوں گا جو تمہیں چھوا۔ وہ سرد لہجے میں بولا تو اس کی بات پر ابیہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ انتہائی فضول انسان ہے آپ سمجھتے کیا ہیں، میں کوئی کھلونا ہوں؟ وہ غصے سے بولی۔ تم نے اپنا آپ خود ہی کھلونا بنایا ہے، تم جیسی گول ڈگر لڑکی۔ خبردار جو مجھے گول ڈگر بولا تو، وہ اس وقت کاٹنے والے انداز میں بولی تو وہ آنکھیں سکیر کر سے دیکھنے لگا۔ تو اور کیا ہو تم جیسی گول ڈگر لڑکیاں تو پتہ نہیں پیسوں کے لیے نہ جانے کتنے مردوں کے ساتھ وقت گزارتی ہو۔ تو یہ الفاظ برا کیوں لگ رہا ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ بس بہت ہو گیا، آپ مجھے مزید کچھ نہیں بول سکتے، ورنہ کیا کرو گی؟ وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں پڑھتے ہوئے بولا۔ تو سہم کر پیچھے ہوگی، بولو نا، ورنہ تم کیا کرو گی؟ وہ اس کی جبڑے بھینچ کر بولا تو تکلیف کے احساس سے اس کی آنکھیں جھلک گئی۔ وہ اسے پیچھے دھکیلتا ہوا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ سامنے دیوار پر بازو ٹکائے آنکھیں موند گیا، مگر بھیگی نگاہیں سامنے آئی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ کیوں درد ہوتا ہے مجھے اس کی آنکھوں سے، آنسوں سے؟ کیوں اسے درد دیتا ہوں تو میرے اندر درد اٹھتا ہے؟ خود سے الجھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ نہا کر باہر نکلا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں بیٹھی کرن کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اور کب کر رہے ہو تم شادی؟ مجھے تو ویسے پتا لگا تھا کہ جب تک تمہاری شادی نہیں ہوگی تب تک وہ کوئی اور شادی اس گھر میں نہیں کرے گا، لیکن پھر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا؟ کرن اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ بی جان کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے بالکل سچ سنا ہے، اور ہمارے بی کی شادی ہو چکی ہے۔ آپ نہیں ملی بھابھی سے؟ بہت خوبصورت ہے اور بہت محبت کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ یہ دیکھیے تصویر۔
ज़ुहैब ने अपना मोबाइल आगे करते हुए कहा, जहां पर स्विमिंग पूल एरिया में वो इसके लबों पे झुका हुआ था। ज़ुहैब ने तस्वीर ही इस वक्त ली थी जब वो इसमें पूरी तरह खोया हुआ था, तो वो तस्वीर से रोमांस झलक रहा था। किरण गुमसुम सी तस्वीर को देखेगी। यकीनन इसे अच्छा नहीं लगा था कि वो शख्स मूव ऑन कर चुका था, क्योंकि दिल ही दिल में वो आज भी खुश होती थी कि उसे चाहता है। हम में से किसी ने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम चाहते थे तुम्हें ये सरप्राइज यहाँ कर मिले, बी जानने का। और फिर अबिया को आवाज दी, जो कि सबके साथ पार्लर जाने के लिए तैयार होने जा रही थी। इसकी गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। वो खुद मबहूस से देखता रह गया, क्योंकि पहली बार से यूं खुले बालों में देख रहा था। और इसके बाल इतने लंबे हो सकते थे, ये तो इसके तसव्वुर में भी नहीं था। इनसे मिलिए, ये किरण बाजी हैं, आपको बताया था ना मैंने। और किरण बाजी, ये हमारी प्यारी सी क्यूट सी भाभी जान, जो कि सच में बिल्कुल भैया के लिए ही बनाई गई हैं। उमेरा ने तंजिया लहजे में कहकर किरण को देखते हुए कहा, तो बेचैन सा होता निगाहें फेर गया। चले भाभी, हम लोग को देर हो रही है, उमेरा ने कहा और फिर इसका हाथ थामे वहां से निकलती चली गई। शाम को वो तैयार होकर बाहर लॉन में खड़ा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था कि पांचों दुल्हनें तैयार होकर पहुंच चुकी थी। सबके ड्रेसेज आज सेम थे। ग्रीन कलर की हैवी मैक्सी में सब प्यारी लग रही थी। तनवीर तेजी से पास आया और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, इसके अंदर जैसे आग लग गई। तनवीर अपनी बहन से मिलने के लिए, मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा अताउले हो, मगर अभी फिलहाल मुझे अपनी बीवी से मिलने दो, क्योंकि सबसे पहला हक तो शौहर का है ना। वो तनवीर के कंधे पर हाथ रखते हुए सर्द लहजे में बोला। तो तनवीर चुपचाप पीछे हट गया। अपने बाल क्यों खुले छोड़े हैं तुमने? उसके सिल्की बालों को हाथों में पकड़े इनकी खुशबू महसूस करने लगा, तो वो खिसक से दूर होने लगी, तो इसकी कमर में सख्ती से हाथ डालते हुए करीब कर गया। यहाँ पर किसी को भी हमारे रिश्ते की असलियत नहीं बनना पता चलनी चाहिए, ये मैं बात तुम्हें पहले भी कह चुका हूं। तो इसलिए जिस सिचुएशन में खड़ी हो ना, वैसे ही खड़ी रहो। और अब की बार अपने होंठ इसके रुखसार पर लगाते हुए बोला, तो पूरी जान से लजर गई। तनवीर एक साइड पर खड़ा अजीब सी निगाहों से इन्हें देख रहा था। कुछ देर के बाद वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। वैसे हमारे दरमियान जो डील हुई थी, इसमें ये तो शामिल नहीं था, तनवीर ने पास आकर कहा। तो वो एकदम से चौंकर से देखने लगा। कहना क्या चाहते हो? वो सर लहजे में बोला। मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ आपकी बीवी होने का टांग करना था, मगर आप तो इसे छू रहे हैं, तो ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तनवीर ने कहा। मैं जानता हूं तुम इसे पसंद करते हो, तो इसीलिए तुमसे ये बर्दाश्त नहीं, लेकिन बीवी का टांग जाहिर बात है वो कर रही है, तो हमें मियाँ बीवी का रोल पूरी तरह प्ले करना होगा। और हमारे यहाँ मियाँ बीवी इसी तरह रहते हैं। उस पार्ट लहजे में बोला। मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जो मर्जी करें, लेकिन कीमत थोड़ी कम है सर जी। तनवीर की बात पर वो बेयकीनी से देखने लगा। ओह, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मंगेतर को ही गोल्ड डिगर समझ रहा था, मगर यहाँ तो तुम भी वैसे ही निकले। अपनी लालच के लिए अपनी मंगेतर को इस्तेमाल कर रहे हो। सही जोड़ी बनेगी तुम दोनों की। वो तलख मुस्कुराहट से बोला। सर जी, 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से शोहर बनने को कहा है, लेकिन ये रोमांस वाला, ये छूने वाला, इसके एक्स्ट्रा पैसे ही लगेंगे। वो बोला। फिक्र मत करो, तुम्हारी बीवी से पहले ही कह चुका हूं कि इसके अलावा जो भी जायद छूऊंगा इसके पैसे दूंगा। और हाँ, बीवी होने के टांग में इसे छूना भी शामिल ही था, मगर इससे ज्यादा अब मैं करूंगा, क्योंकि पैसे तो दे ही रहा हूं। 2 करोड़ रुपए दूंगा और इसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहूंगा। उस पार्ट लहजे में बोला। तो तनवीर हंस पड़ा। हाँ हाँ,
पता था मुझे ये सब होगा, क्योंकि वो हसीन ही इतनी है कि इसे देखकर दिल बेईमान हो जाता है। वो इसे बेबाक निगाहों से देखते हुए बोला तो मुट्ठियां बींच कर रह गया। फिर वो स्टेज की जानिब बढ़ा जहां वो सब लोग अपना फोटो शूट करवा रहे थे और वो बैकग्राउंड पे मेहंदी के गीत चल रहे थे। कुछ देर के बाद ढोल वाले आए और फिर सबने ढोल की थाप पर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। सुहेब और उमैर इन्हें भी खींच कर स्टेज पर ले आए। वो इसे बाहों में बड़े डांस करने लगा। वो इसे छू रहा था, किस कर रहा था। वो इसकी बाहों में बेजान हो रही थी। इसका लम्स इसके जज्बात को बदल रहा था। इसे इसकी कुर्बत मुदहोश कर रही थी। वो इन जज्बात से आ रही थी, मगर इस शख्स ने पहली बार इसके लबों को छुआ तो तब इसे मालूम हुआ कि वो भी अपने दिल में अंदर दिल रखती है। तनवीर इसके लिए सिर्फ एक अहमियत रखता था, वो इसे सबसे बचाता था और वो इसे इसी नाते पसंद करती थी। मगर मोहब्बत क्या होती है ये अब जान पाई थी। इसका दिल जैसे पसलियों में धड़क रहा था। फिर फंक्शन खत्म होते ही सब दुल्हनें लिविंग रूम में बैठी मेहंदी लगवा रही थी। वो भी साइड पर बैठ गई और बहुत थक चुकी थी सब, मगर इसे बहुत भूख लगी थी। बाकी सबको तो इनके मंगेतरों ने खाना खिला दिया था और बीजान ने किरण से कहा था कि इसे खाना खिला दो, मगर इसने खुद ही खाने से इनकार कर दिया। भूख से इसे चक्कर आ रहे थे। इसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और सुबह से वो किचन में लगी हुई थी। हालांकि बीजान ने मना भी किया था, मगर इसने घर के लोगों के लिए खाना खुद बनाया था। अब थकन और भूख से इसकी बस हो चुकी थी। भाभी, आप कमरे में जाएं और आराम कर लें, पलवशा ने कहा तो वो उठकर अपनी मैक्सी संभालती ऊपर आई और वो बेड पर बैठा लैपटॉप पे लगा हुआ था। तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हें बता दिया होगा, इसकी और मेरे दरमियान अब 1 करोड़ नहीं 2 करोड़ की डील हो चुकी है। यानी कि मेरा और तुम्हारा अब रिश्ता थोड़ा सा मजीद गहरा होने वाला है, चाहे चंद माह के लिए ही, मगर हम मुकम्मल बीवियां बीवी जैसे रहेंगे। कल से मेरा और तुम्हारा जिस्मानी ताल्लुक भी होगा, तो इसके लिए तुम मेरे ख्याल में ज़हनी तौर पर तैयार हो गई होगी। वैसे तुम्हारे मंगेतर गोल्ड डिगर ही निकला, शेमलेस कपिल बनोगे। बाकी फिर मैंने सोचा कि जब मैं इतने पैसे दे रहा हूं तो कुछ मुझे भी फायदा होना चाहिए, तो अब मैं भी अपने जज्बात को ठंडा कर ही लेता हूँ। वो अपने मखसूस काटदार अंदाज में बोलता इसके अंदर जहर उतार रहा था। इसकी भूख प्यास इसकी बातों से मिट चुकी थी, मगर आज इसे लगा था कि अब तक का सबसे जोरदार तमांचा ये है जो इसके मुंह पर पड़ा था। तनवीर भी इसे इस्तेमाल कर रहा था। ये बात अब वो समझ चुकी थी। वो शख्स जो इसका हमदर्द बना फिरता था, पैसे की खातिर इस हद तक जा सकता था, इसने कभी नहीं सोचा था। वो पूरी रात सोफे पे लेटी बेआवाज आंसू रोती रही, फिर सुबह बुखार में तप रही थी। वो बीजान के बुलावे पर बमुश्किल उठकर वैसे ही नीचे आई तो इसका पांव बहका और सीढ़ियों से गिरती चलेगी। इसकी दिल खराश चींकों से पूरा पाशा हाउस गूंज उठा। सब भागते हुए डाइनिंग हॉल से बाहर आए तो वह फर्श पर बेइज्जत पड़ी थी और साथ गिर्द खून ही खून था। हमदान की तो जैसे जान लबों पे आ गई। वो भागता हुआ इसके पास पहुंचा और इसे बाहों में भरकर बाहर की जानिब भागा। इसके सर पर बहुत बड़ी चोट लगी थी। वो अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर के साथ वो ऑपरेशन थिएटर में आया और डॉक्टर मारिया ने ट्रीटमेंट शुरू किया। बुखार बहुत तेज है सर, डॉक्टर मारिया ने कहा तो वो लब कुचलते इसे देखने लगा। फिर ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर मारिया ने इसके जिस्म के बाकी हिस्सों को देखा तो एकदम चीख उठी, व्हाट द हेल, ये सब क्या है डॉक्टर हमदान? क्या हुआ डॉक्टर मारिया? तो जल्दी से पास आकर बोला। तो डॉक्टर मारिया ने लाइट्स तेज की तो देखकर साकित रह गया। इसके जिस्म पर जगह जगह निशान थे, जैसे इसे मारा पीटा गया हो। ये सब क्या है? क्या आपकी वाइफ पर कोई टॉर्चर करता रहा है? वो बोली। मुझे नहीं मालूम, वो निगाहें चुराते हुए बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी बीवी है तो आपको क्यों नहीं पता इस बारे में? डॉक्टर मारिया ने पूछा। क्योंकि अभी तक
हम ने अपने रिश्ते को इस हद तक नहीं लेके जाना मुनासिब नहीं समझा। वो भी बहुत छोटी है, अगले महीने वो 18 साल की होने वाली है, तो इसीलिए। वो निगाहें चुराते हुए बोला। हो, अच्छी बात है आपने ये सोचा, लेकिन कम से कम आप इसके दिल की बात सुन लेते। ना जाने इसके दिल में कितने तूफान होंगे। क्या इसने आपको बताया भी नहीं, या फिर आपकी ज़हनी आमदनी है ही नहीं? डॉक्टर मारिया खोजते लहजे में बोली। आप अपने काम से काम रखें, उस पार्ट लहजे में बोला। ये ले, ये लॉकेट है इसका, गले से उतारा था। वो बोली तो वो एकदम चौंक गया। इसे वो लॉकेट जाना पहचाना मगर कहाँ देखा ये भूल गया था। फिर वो अपने ऑफिस आ गया और इस हार्ट शेप लॉकेट को खोलने लगा और टक की आवाज से खुल गया। इसमें लगी तस्वीर देखकर वो साकित रह गया। वो तस्वीर बहुत अच्छी तरह जानता था और इसे इस तस्वीर में मौजूद शख्स के आखिरी अल्फाज अच्छी तरह से याद थे, मगर वो महज 15 साल का था, मगर वो अहद पूरा ना कर सका। फिर कुछ देर के बाद इसे होश आया तो वो कमरे में आया तो इसे घेरे हुए था। प्लीज आप सब लोग घर जाइए ना, आपकी शादियां हैं, वो धीमे से लहजे में बोली। हरगिज नहीं भाभी, जब तक आप ठीक नहीं होंगी तब तक कोई शादी नहीं होगी, जैद ने कहा, जो कि सबसे ज्यादा इस शादी के लिए एक्साइटेड था। बाकी सब भी इसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। जैद भाई इस शादी के दिन का बहुत इंतजार कर रहे थे। प्लीज इस तरह मत छोड़िए मेरी वजह से, मेरा होना जरूरी नहीं। वहां आप लोग शादी कीजिए और मैं यहाँ ठीक हूँ। वो जल्दी से बोली। आपसे किसने कहा कि आपका होना हमारे लिए जरूरी नहीं? आप हमारी फैमिली मेंबर हैं, आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बगैर ये शादी नहीं हो सकती। हमारी फैमिली एक मेंबर भी कम हो, हम खुश कैसे बना सकते हैं खुशी? आप जब तक हॉस्पिटल से ठीक होकर घर नहीं पहुंच जाती, हमारा फंक्शन नहीं होगा, जैद ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा जैद ने। और भी आपके बगैर हम ये शादी हरगिज नहीं कर सकते। अरमान ने कहा। हाँ तो ठीक है ना, अगर हमारा होना जरूरी है तो मैं चलूंगी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। चलिए हम अभी घर चलते हैं। वो बोली तो हमदान संजीदगी से इसे देखने लगा। माई डॉल प्रिंसेस, ये मुमकिन नहीं, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे हैं। फंक्शन 2-4 दिन ठहर कर रख लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी सेहत से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। वो इसके रुखसार को हल्के से छूते हुए इस पर झुकते हुए बोला, तो हैरानगी से इसे देखने लगी। मैंने बोला है ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज चलिए ना, मुझे फिर कल गिल्ट रहेगा कि मेरी वजह से आप लोगों ने अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी। वो बोली तो वो सब एक दूसरे को देखने लगे। ओके फाइन, लेकिन आप फंक्शन की वजह से अपनी सेहत को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आपकी तबीयत जरा भी खराब हुई तो आप फौरन बताएंगे। अरमान ने कहा तो हमदान को दिखने लगी, जिसकी आंखों में नरमी थी। फिर वो 1 घंटे में इसे लेकर घर पहुंचे। इसने लहंगे की बजाय सिंपल गाउन सूट पहनने के लिए निकलवाया। पार्लर वाली इसे तैयार करके जा चुकी थी। वो नीचे वाला कमीज पहन चुकी थी और गाउन पहनना बाकी था। जब ही हमदान अंदर दाखिल हुआ तो हड़बड़ा गई। इसकी बैग काफी गहरी थी। हमदान ने गाउन पहनते हुए इस निशान को देखा, जैसे आंखों में लहू उतर आया। ये तुम्हारे जिस्म पर निशान कैसे हैं? वो बोला। आपको इससे क्या? आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप इस तरह के सवाल करें। मैं तो एक लड़की लालची और दौलत की होश आपके पास आई हूं, तो आप अपना काम कीजिए और मुझे अपना करने दीजिए। उस पार्ट चेहरे से बोली तो वो लब भींच के रह गया। फिर वो शादी के फंक्शन पर एक साइड पे बैठी रही और तनवीर इसके पास आकर बैठा कोई बात कर रहा था, मगर उस पार्ट चेहरे से सामने देख रही थी। फिर वो थोड़ा आराम करने के लिए कमरे में आई तो तनवीर इसके पीछे चला आया। मेरी मक्खन मलाई नाराज है मुझसे?
वो इसकी थोड़ी थामते हुए बोला तो पीछे कोई, आपको क्या लगता है जो कुछ आपने कल किया इसके बाद मुझे आपसे बात करनी चाहिए? आपने मुझे बेच डाला। क्या समझ रखा है आपने मुझे? कोई जिस्म फरोश हूं मैं? मेरे शौहर से डील कर रहे थे? छी, प्यार का दावा था ना, वो कल मैंने पाकर समझ लिया, और मैं समझ ही नहीं पाई इसके पीछे आपका मकसद क्या है। आपने तो सिर्फ मुझे एक सीरी की तरह इस्तेमाल किया। मुझसे आपने ये कहा कि आप मेरी खातिर ये सब करना चाहते हैं ताकि मुझे घर दे सके अच्छा, मगर मुझे दोनों इस छोटे घर में आपका साथ कबूल था, क्योंकि मैं समझती थी आप मेरी हिफाजत करते हैं दूसरों से। लेकिन मैं गलत थी, मुझे मेरे ही शौहर के सामने जलील कर दिया आपने। क्या आप अपनी दोनों बहनों में से किसी एक को इस काम के लिए चुन सकते थे? वो तलख लहजे में बोली तो तनवीर इसे गुस्से से देखने लगा। ए मक्खन मलाई, मैं इस पैसे की खातिर अपनी बहन तो क्या, अपनी माँ को भी बेच डालूं। तुम चुपचाप इस शख्स के साथ वक्त गुजारो और इससे पैसे लेकर घर आ जाना, और इसके बाद तुम्हें बहुत सारे मर्दों के पास जाना है। इसके जबरे भेजते हुए बोला तो फटी फटी निगाहों से इसे देखने लगी। इसकी जुबान जैसे इसका रूप देखकर गंग हो गई थी। अभी पीछे से किसी ने इसे खींचा और वो अरमान था जो कि वॉशरूम के लिए आया था, मगर इसके दरवाजे से सामने से गुजरा तो सब सुन चुका था। अरमान इसे बेदर्दी से पीटने लगा। ये मेरी बहन है, और एक बाई के होते हुए इसकी बहन से जो ऐसे बात करेगा मैं इसे काट डालूंगा। अरमान इसके जबरे भींच कर बोला, और इसी वक्त हमदान अंदर दाखिल हुआ जो कि सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। क्या हो रहा है ये? हमदान ने पूछा। ये निकलो यहां से, अरमान चीखा तो बकता जगता निकल गया। क्या है ये सब? वो हैरानगी से बोला। आप इतनी नीच हरकत कर सकते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था। छी, अरमान गुस्से से बोला। क्या बदतमीजी है ये? और नागवारी से बोला। अच्छा, ये बदतमीजी है, मगर आपने जो किया वो सब क्या है? वो तलख लहजे में बोला। फिर इसने तनवीर के इरादे बताए तो वो साकित रह गया। ये क्या बकवास है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हमदान मुट्ठियां बींच कर बोलता बाहर जाने लगा। प्लीज ये देखिए, हाथ जोड़े हैं, मेरा तमाशा मत बनाइए वरना बीजान शर्म से मर जाएंगी, अरमान ने कहा। फिर गुस्से से बाहर निकल गया। रोती हुई अबीहा के पास बैठकर इसका हाथ थाम गया, मगर वो इससे हाथ छुड़ाकर रुख फेर की। वो गहरा सांस भरता उठ खड़ा हुआ। फिर कुछ देर में रुखसती हुई और वो घर पहुंचे ही थे कि तनवीर वहां आकर हंगामा करने लगा। चल मेरे साथ, तनवीर ने अबीहा का हाथ पकड़कर कहा तो हमदान ने इसके हाथ से हाथ छुड़ाया। अभी और इसी वक्त यहां से निकलो, वरना पुलिस बुलवाकर अरेस्ट करवाऊंगा। वो गुस्से से बोला। हमारी बच्ची है और हमारे साथ ही जाएगी। तनवीर की मां बोली। ये बच्ची जवाद पाशा की है, यानी पाशा खानदान के सबसे छोटे बेटे की, यानी हमारा अपना खून। वो सर्द लहजे में बोला तो सबको जैसे सांप सूख गया। अब तुम लोग यहाँ से निकलोगे या मैं पुलिस को बुलवाऊं? वो बोला तो सबने खिसकने में ही आफियत जानी। बीजान तो इसे अपने सीने से लगाए तरफ तरफ कर रोने लगी। बस मेरा बच्चा, अब मेरा बच्चा जो चाहेगा वही होगा। तुम्हें अगर हमदान के साथ रहना है तो ठीक है, अगर नहीं रहना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बीजान, हम सब आपके साथ हैं। हमारी छोटी सी गुड़िया है, हमारी बहन, और हमारी बहन के साथ अगर कोई ज्यादती करेगा तो ये भाई डट कर खड़ा हो जाएगा, जोहेब ने कहा। और फिर बारी बारी सब इसको अपनापन दिखा रहे थे, और वो भीगी आंखों से हमदान की तरफ देख रही थी जो चुपचाप खड़ा था। मुझे इनके साथ नहीं रहना, वो गुस्से से बोली तो हमदान आंखें कीर कर देखा। फिक्र मत करो, मुझे उठाकर कमरे में ले जाना आता है, और ये जो तुम्हारे साथ इतने रिश्ते निभा रहे हैं ना, मेरी एक गरज से ये दुबक कर अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाएंगे। मेरी नरमी को नाजायज फायदा मत उठाओ, उठो जाओ यहां से,
وہ मुंह बनाकर बोला तो सब सटपटा गए। इसकी बीजान जिंदा है और खबरदार मेरी बच्ची के साथ सख्ती से बात की, वो गरज कर बोली और फिर से लेकर कमरे में चली गई। अगले 3-4 दिन यूं ही गुजर चुके थे। वो इसे देखते ही बीजान के कमरे से ऊपर इसके साथ जो कमरा था इसमें शिफ्ट हो चुकी थी। इसके आते ही वो कमरे में जाकर बंद हो जाती थी। वो दिल ही दिल में महज जंजला के रह जाता था। आज सब लोग लिविंग रूम में बैठे मूवी देख रहे थे कि जब भी वो अंदर दाखिल हुआ तो सब एक दूसरे को देखने लगे। वो इत्मीनान से चलता हुआ इसके साथ जाकर बैठ गया, मगर वो इसे देखते ही उठकर जाने लगी, मगर इसका बाजू पकड़ अपने पास बराबर बिठा गया। सब इतने खुश हैं, सबका प्लान क्यों खराब कर रही हो? मुझसे एलर्जी है तो ठीक है, मेरी खातिर नहीं तो इनकी खातिर बैठ जाओ, तो तुम्हारी खातिर हर एक से लड़ने के लिए तैयार है। वो बोला तो अबिहा चुपचाप बैठ गई। फिर मूवी शुरू हुई तो वो हॉरर थी। वो डर कर इसके बाजू को दबोच कर बैठ गई। जब कोई खौफनाक मंजर आता तो मजीद करीब हो जाती और एक सीन में वो चीख मारती हुई इसके सीने में मुंह छुपा गई थी। वो धीमी सी मुस्कुराहट से इसे अपनी बाहों में भर गया। मूवी खत्म होते ही लाइट ऑन हुई तो वो अपनी ऑकवर्ड सिचुएशन से शर्मिंदा होती पीछे हो गई। फिर एक एक करके सब वहां से चले गए, मगर वो वहां बैठी थी क्योंकि हमदान इसका हाथ जोर से जकड़े हुए था। मुझे सोना है, वो मन मना कर बोली, तो चलो कमरे में चलते हैं और वहां जाकर मेरी बाहों में सो जाना, फिर डरने लगेगा। वो क्या है ना, तुमने खौफनाक मूवी देखी है और अगर रात को तुम्हारे पास ऐसी भूतनी आ गई तो फिर क्या करोगी अकेली? इसलिए ऑफर कर रहा हूं, मेरे साथ चलो। वो बोला, आपसे कम तो कोई खतरनाक जिन होगा, मुझे इसके साथ रहना मंजूर है, मगर आपके साथ नहीं। वो गुस्से से कहती हुई अपना हाथ छुड़वाकर वहां से चली गई। वो लब भींच कर कमरे में आ गया। अबिहा इसे सुनाकर अपने कमरे में आ तो गई थी, मगर जब वो सोने के लिए लेटी इसे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था इसके पीछे कोई लेटा हुआ है। वो खौफजदा सी होकर उठकर बैठ गई। फिर जब इसका खौफ ज्यादा हुआ तो उठकर बेख्तियार हमदान के रूम में आई तो मुंह पर दूसरी तरफ चादर लिए लेटा हुआ था। वो चुपके से आकर इसके साथ लेटकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगी कि हमदान मुड़ते हुए से बाजू से थामकर अपने सीने से लगा गया। तुम तो कह रही थी कि मुझसे कम खतरनाक जिन होगा, तो अब अपने जिन के पास क्या करने आई हो? वो इसके कान की लो को लबों से छूते हुए गंभीर लहजे में बोला तो इसके मजीद करीब हो गई। क्या हुआ, बोलती क्यों बंद हो गई? इसने दोबारा पूछा तो वो एकदम हिचकियों से रोने लगी। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? वो इसके रोने से घबरा गया। बताओ ना क्या हुआ है? उसे मुसलसल रोते हुए देखकर झंझला कर बोला, वो आप मुझसे इतने प्यार से बात कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वो रोते हुए बोली तो हमदान को बेख्तियार इस पर प्यार आ गया। मेरी जान के टोटे, मैं अब ऐसे ही प्यार से बात करूंगा तो क्या तुम मेरी बात पे बात पर रो पड़ोगी? वो इसकी ठोड़ी थामते हुए बोला, मैं आपसे नाराज थी, मगर आपने मुझे मनाना जरूरी ही नहीं समझा और अब मुझे प्यार जता रहे हैं। बहुत बुरे हैं आप, आई हेट यू। वो इसके सीने पर मुक्के बरसाते हुए बोली, अब तुम मुझे देखते ही कमरे में छुप जाती थी तो मैं मनाता कब? मैं कोई सुपरमैन तो हूं नहीं जो पाइप से चढ़कर ऊपर तुम्हारे कमरे में आ जाऊं। मेरे दिल पर क्या बीतती थी तुम जानती हो। एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। तुम तो ऐसे फैसला कर लिया, पहले बीजान के पास सोई, फिर अलहदा कमरे में। मेरे तो जज्बात का खून हो गया ना। वैसे भी मैं रूठों को बहुत जल्द मना लेता हूँ, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो इसकी नाक पे नाक रगड़ते हुए बोला, आप मनाएंगे, बना तो नहीं पाएंगे, मैं नाराज ही रहूंगी। वो रूठेपन से बोली, मतलब अपने शोहर को बर्बाद करना चाहती हो? वो शायद आवर्ते हुए बोला, मैंने ऐसा कब कहा? मैं क्यों ऐसा चाहूंगी? वो मुंह बनाकर बोली,
मेरी टीचर कहा करती थी, अगर मोहब्बत रूठ जाए ना तो रब रूठ जाता है, और रब रूठ जाए तो बंदा बर्बाद हो जाता है। इसलिए वक्त से पहले रूठों को मना लेना चाहिए। वो इसकी छोटी सी नाक को दबाते हुए गंभीर लहजे में बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं माफ कर दूंगी आपको, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? वो अपनी हाथ अपने रुखसार के नीचे रखते हुए इसकी तरफ देखते हुए बोला, आप मुझे तब तक नहीं छुएंगे जब तक मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट न कर लूं। तो वो एक झटके से खड़ा हो गया। क्या बात कर रही हो यार, बच्चे की जान लोगे क्या? वो चिल्ला कर बोला, ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं तो मैं आपको माफ नहीं कर सकती। पता भी है मुझे कितना शौक था अंग्रेजी बोलने का, जैसे आप बोलते हैं पटर पटर, लेकिन मुझे मम्मी ने पढ़ने ही नहीं दिया। और वैसे भी आगे मेरे बच्चे भी होंगे ना, स्कूल जाएंगे, और पेरेंट्स मीटिंग में अनपढ़ जाहिल बीवी को लेकर जाएंगे क्या? वो मुंह पसोड़ कर बोली, जब छूऊंगा नहीं तो बच्चे क्या डाउनलोड होंगे? मुंह बना कर बोला तो खशमीगी निगाहों से देखने लगी। अच्छा ठीक है, लेकिन इस कमरे में अलग नहीं जाओगी, और हाँ, किसी किस वगैरह करने दोगी ना? वो बोला तो वो कुछ देर सोचने के बाद सरस भाव में हला गई, तो इसके चेहरे पर झुका, इसके हर नक्श को चूमता चला गया। वो शर्माती लजाती इसके सीने में चेहरा छुपा गई। वो इसे बाहों में भरे आंखें मूंद गया। वो पास थी, यही काफी था, और वक्त के साथ साथ वो मजीद करीब आ ही जाएंगे, वो जानता था। मगर वो इस पे जोर जबरदस्ती करके अपनी मोहब्बत खोना नहीं चाहता था। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, बल्कि रूह और दिल से शुरू होता है और जिस्म तक पहुंचता है, और यही इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाता है।